Welcome student in the new lecture of biotechnology principle and process. In previous lecture we have discussed how to construct a recombinant DNA. First of all, you should know what is a recombinant DNA. A DNA, the answer is a DNA which is formed by union of one foreign DNA and one vector DNA. When a foreign DNA joined with a vector DNA with the help of DNA ligase, then a recombinant DNA is formed. And the technology which is used to construct the recombinant DNA is known as recombinant DNA technology. It is also known as genetic engineering as well as rDNA technology. So you have studied already genetic engineering. What is the other name of genetic engineering? The genetic engineering is known as recombinant DNA technology. In short, it is known as rDNA technology. What happens in this technology? In this technology, a foreign DNA, the foreign DNA is alien DNA. This is gene of interest. This is desirable gene. This gene is responsible to produce those products which is used by human population. It means it is very clear that we select a gene which gene is used in human welfare to produce their product, and the gene which act as a catalyst and produce the product like antibiotics, vaccines, antibodies, proteins, vitamins and so many things which is used in human welfare is known as foreign gene. And second is vector DNA. Vector DNA means the DNA which is used for cloning to make multiple identical copies of a foreign DNA is known as vector DNA. What is vector DNA? Vector DNA is a cloning DNA which is used to clone and produce multiple copies of foreign DNA. Finally, when a foreign DNA, this structure, when a foreign DNA joined with a vector DNA, joined by vector DNA with the help of DNA ligase enzyme, then a recombinant DNA is formed. Then a recombinant DNA is formed. This recombinant DNA is also known as rDNA as well as chimeric DNA. This is also known as rDNA as well as chimeric DNA. So the technology which is used to construct such type of recombinant DNA, is known as recombinant DNA technology. Students, before discussing any other things, we want to remember you that the foreign DNA and vector DNA both must be of different origin. Both must be of different origin. The vector DNA from other origin, foreign DNA from other origin. Vector DNA for cloning, foreign DNA which act as a catalyst to produce human desirable product. Both should be different origin. How a foreign DNA is obtained? This is the question. Suppose we want to produce a vitaminous product, then first of all
we have to search our desirable bituminous product where it naturally produced. The organism which produced this natural product, which is used by human population, is a source organism, and the gene in those organism which is responsible to produce our target product is source gene or source DNA. It is also known as foreign DNA. When we searched such organism which produce our desirable product, then by different techniques we isolate their DNA. We have already discussed in earlier classes. First, suppose we have source DNA in which the foreign DNA which to be cloned are present. Suppose this is the source DNA, and this source DNA have a target gene, and this gene is the foreign gene, and this gene is required to produce a human desirable product. So question is here, how will you isolate this target gene from this source DNA? The answer is very simple. This source DNA is digested or cutting by a molecular seizure, that is restriction endonuclease. When this restriction endonuclease act on this source DNA, by their activity this restriction endonuclease enzyme moves on the whole length of this DNA, and when this enzyme found their palindromic recognition sequence, then this enzyme bind to that site and cut both strands of DNA. When this enzyme act on a source DNA and this enzyme cut the source DNA, then a multiple different sized DNA fragments are formed, and in this fragment our desirable gene, target gene, is present. So how will you cut or isolate this DNA? By the restriction endonuclease. It is very clear. Now this variable different size fragment is a mixture which have our desirable DNA. So second question is here, how will you isolate this desirable gene from the mixture of this variable size DNA fragment? The question is simple. This mixture, which is the digested product of source DNA by the action of restriction endonuclease, this mixture have our desirable gene. So how will you, just listen me carefully, how will you isolate this desirable gene from the variable size DNA fragments? The answer is agarose gel electrophoresis. The technique agarose gel electrophoresis is a technique through which we isolate our one desirable gene from the mixture of variable size DNA fragments. By using this technique, that is known as agarose gel electrophoresis, we isolate our desirable gene, this desirable gene, from the mixture of variable sized DNA fragment. Now third question, what is agarose gel electrophoresis? It is simply known as gel electrophoresis. What is this? What is this? Answer one by one, simultaneously you see and listen to me what I am saying. The resultant, this is the resultant.
the resultant of restriction endonuclease enzyme are variable sized DNA fragments. Okay, this is the first point. कि when restriction endonuclease act on the source DNA, then source DNA converted into the variable sized DNA fragments, and these are the resultant. Second point, the gel electrophoresis is a technique. Gel electrophoresis is a technique to separate desirable gene from the mixture of variable size DNA fragment. This is the second point. What is the first point? The resultant of restriction endonuclease are variable size DNA fragments in which our desirable gene is present. Second point, gel electrophoresis is a technique to separate this desirable gene from the mixture of the DNA band or DNA fragments. Now third point, this gel electrophoresis is a technique used for the separation of molecules like DNA, RNA and protein from their mixture. What is the third point? Means this gel electrophoresis is not only used for the separation of DNA band. This gel electrophoresis is used to separate DNA, RNA and protein from their mixture. Now fourth point, just listen to fourth point. Since DNA molecules are negatively charged, fourth point, I am discussing fourth point. Since DNA molecules are negatively charged, so this DNA molecule moves towards anode plate under an electric field. Since DNA molecules, the variable size DNA fragments, since DNA are negatively charged, so this DNA band moves through anode plate under an electric field. In a medium, negatively charged DNA moves through the anode plate in a medium or matrix. The matrix, which is next fifth point, the matrix nowadays used, this matrix in which DNA bands are separated, this matrix are nowadays used is known as agarose, which is a natural polymer isolated from seaweeds. The medium nowadays used for the separation of DNA bands, for the separation of RNA bands, for the separation of protein molecule, but here we are staying in separating mechanism of DNA only. The medium nowadays used for the separation of DNA band is agarose, and agarose is a chemical which is a natural polymer isolated from seaweeds found in oceans. ओशियंस में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन ओशियंस. हाउ दे आर सेपरेटेड? Sixth point, the DNA band, these are the DNA bands. DNA bands are separated means resolve. DNA bands are separated according to their size. Means small sized fragments moves rapidly while larger sized fragments moves slowly. So according to their size they are resolved in this medium. That medium is agarose gel under an electric field because of anode and negatively charged DNA molecules. Now question is,
Another question. Can you see this DNA band in agarose gel? The second question is, can you see the DNA band which is separated in this medium under an electric field? Answer is no. Answer is no. Without staining, without ultraviolet plates, we can't see the DNA band separated on this agarose gel. So what will you do? What will you do to observe or visualize these DNA fragments separated in this medium? The answer is, the DNA band for the visualization first is stained in ethidium bromide, first is stained, colored in ethidium bromide, and when it resolve on this medium, then can be visualized under ultraviolet plates, under ultraviolet plates. The second question, which is not mentioned in your topic, but a student think about how this agarose gel is prepared, how this agarose gel is prepared. So students, for your curiosity, I am giving this answer. The agarose is a polysaccharide. Agarose is a polysaccharide obtained from seaweeds. And when agarose gel is obtained from seaweeds, then this agarose gel is grinded to make thin powder. And when the powder is formed, the powder is kneading under water, like the flour kneading, wheat flour, which is used to make chapati. Just same way, the agarose powder is kneading by a person, and when their gel is formed, then their gel is plated like this rectangular way or squared way. The kneaded agarose gel, by using rolling pin, you make a rectangular thick plate. This is rectangular thick plate, just like to chapati is round, but this is rectangular. You make agarose powder as a rectangular thick chapati. Okay, now make some wells, that means groups, wells means groups. You know, earlier times the people pull the water from the wells for drinking, but nowadays it is not convenient because of the easily supply of water. Wells, drain. Now some wells are made on one side of this agarose gel, and an anode plate is placed opposite to these wells. Some wells are made on one side and anode plate are placed on other side. This is the preparation of agarose gel. Now see, restriction endonuclease resultants are variable size DNA fragments. So these variable size DNA fragments are placed in all the wells, according to their size. That means some amount in first well, some amount in second well, some amount in third wells. That means you transfer this band into the wells of agarose gel. Okay, now the ethidium bromide dye are placed into the wells to stain the DNA bands. Ethidium bromide dye dragged into the wells, the DNA band is stained, colored in ethidium bromide, and leave this experiment for some times.
you will observe that DNA are negatively charged, and here we placed anode plate. Then an electric field is created around the agarose gel. Under an electric field in this medium, the medium is agarose. Under an electric field in this medium, the DNA bands moves on this plate, that is agarose plate, and their movement is according to their size. That means the velocity of the movement of DNA band on this agarose gel, the movement of the velocity of DNA band on this agarose gel is inversely proportional to the band size. So the small size DNA band moves further and large size bands move slower. Finally, these large size band located near the wells and smallest size band away from the wells. At last, the different size DNA fragments are arranged on the different rows. Now, by using ultraviolet microscope or by using ultraviolet plate, you can easily visualize DNA bands present on this agarose gel and resolve according to their band size. That means you can visualize these DNA bands by using ultraviolet microscope when they are stained in ethidium bromide. What will you see? You see bright orange colored band present according to the size on this agarose gel. So students, for this explanation you have learned that agarose gel is a medium for the separation of DNA bands. It is a natural polymer obtained from seaweeds, and this agarose gel, which is a matrix or medium, provide sieving effect. You should learn it. This medium provides sieving effect. Okay? So how will we separate our desirable gene from the fragments of variable size DNA bands? By using gel electrophoresis. Now question: if the DNA bands are separated on this gel paper, then how will you isolate your desirable DNA band? Suppose this is our desirable band. This is the target gene, and we need only this gene, only one gene for the cloning of recombinant DNA. So after separation, how will you isolate this desirable gene from the agarose gel? Answer is we cut this DNA band from the gel paper. This is agarose gel. You not separate this DNA band alone. You cut the DNA band from the gel paper together with the gel paper. And when we isolate by cutting this DNA band from the gel paper is known as elution. This is known as elution. Okay? E-L-L-U-T-I-O-N, elution. The separation of DNA band with the agarose gel from the agarose plate is known as elution. And after washing you remove the agarose from the DNA band, your DNA band is isolated, and this is foreign DNA. The students, this is the technique to use separate or desirable gene. And how will you separate this desirable gene? You have already studied it. Think about the
all objects and try to understand each and every steps, then I will give you notes. Okay students, now just listen once in Hindi. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है जिसको शॉर्ट में आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है जिसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एक फॉरेन जीन को एक वेक्टर जीन के साथ, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, प्रश्न है। तो आंसर है कि इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में एक फॉरेन जीन को एक वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके इन दोनों को जोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है जिसका नाम आरडीएनए भी होता है और इसी का नाम काइमेरिक डीएनए भी होता है। अब प्रश्न है कि ये फॉरेन जीन क्या है, ये वेक्टर डीएनए क्या है। तो आंसर है फॉरेन जीन एक ऐसा जीन है जो ह्यूमन के लिए रिक्वायर्ड किसी डिजायरेबल प्रोडक्ट को बनाने का काम करता है। जैसे हमें किसी एक एंटीबायोटिक्स को बनाना है तो ह्यूमन के रोगों के इलाज में जिस एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है उस एंटीबायोटिक्स को बनाने वाला जो जीन है वही जीन फॉरेन जीन है, वही जीन एलियन जीन है। इसी का नाम ट्रांस जीन भी होता है, इसी को जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं और इसी जीन को हम लोग डिज़ायरेबल जीन भी कहते हैं। तो फॉरेन जीन जब कभी भी कहा जाए तो आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेंगे कि ये एक ऐसा जीन होगा जिस जीन का यूज़ करके हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर में यूज होगा। तो ह्यूमन के लिए प्रोडक्ट को बनाने वाला जीन ही क्या होता है, फॉरेन जीन, जो एक कैटलिस्ट का काम करता है। अब प्रश्न है कि इस फॉरेन जीन से यदि हमें प्रोडक्ट बनाना है तो इस फॉरेन जीन का नंबर हमें ज़्यादा चाहिए, तभी तो ये ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्रोडक्ट को कमर्शियल स्केल पर बनाना चाहते हैं तो आपको कैटलिस्ट की मात्रा ज़्यादा चाहिए और आपके लिए उस प्रोडक्ट का कैटलिस्ट सिर्फ जीन ही है। इसलिए हम इस जीन के नंबर को बढ़ाने के लिए, इसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए इस जीन की क्लोनिंग कराते हैं। और इस क्लोनिंग कराने के लिए मतलब उसी की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं। और इस जीन की क्लोनिंग कराने के लिए हमें आरडीएनए बनाना पड़ता है। तो क्लोनिंग कराने के लिए हमें क्या ज़रूरी पड़ेगा, आरडीएनए को बनाना। एक बात हुई, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर डीएनए क्या होता है, तो एक ऐसा ये डीएनए होता है जिस डीएनए का यूज हम लोग क्लोनिंग की प्रोसेस के लिए करते हैं। अगर इस जीन की मुझे मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनानी है तो ज़रूरी है कि इसको मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाने में हेल्प कौन करेगा, तो एक डीएनए ही करेगा और वह डीएनए क्या कहलाता है, वेक्टर डीएनए। तो एक ऐसा डीएनए जो क्लोनिंग का काम करेगा उसी का नाम क्या होगा, वेक्टर डीएनए। आगे के फर्दर जब लेक्चर्स आएंगे तो उसमें क्लोनिंग वेक्टर के बारे में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। अभी आपको समझाने की बात समझा रहे हैं। अब इस फॉरेन डीएनए को इस वेक्टर डीएनए के साथ हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है एक एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। इस एंजाइम के द्वारा जब एक फॉरेन डीएनए को हम वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ते हैं तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है कि हम इसके नंबर को कैसे बढ़ाएंगे, जो बाद में आएगा।
चलिए इतना हुआ। अब प्रश्न है कि हमें ये फॉरेन जीन मिलेगा कैसे, हम इस फॉरेन जीन को निकालेंगे कैसे। तो आंसर होता है कि कोई भी एंटीबायोटिक्स अगर आपको बनानी है तो वह एंटीबायोटिक्स नेचर में कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल या सेल या एंजाइम बना रहा है। कई चीज़ें माइक्रोब भी बनाते हैं या एनिमल भी बनाता है या प्लांट भी बनाता है या कोई सेल भी बनाती है या सेल का एंजाइम बनाता है। दिस 5 थिंग्स आर मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। अब हमें केवल सर्च खोजना ये है कि ये जीन या ये प्रोडक्ट, जो गिवन प्रोडक्ट हमें दिया जा रहा है, ये कौन बनाता है। हमने खोज लिया कि एक ऑर्गेनिज्म एक है और ये माइक्रोब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसी के द्वारा हमारा डिजायरेबल एंटीबायोटिक्स बनता है। तो जो ऑर्गेनिज्म किसी एंटीबायोटिक्स को बनाता है वह ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑर्गेनिज्म कहलाता है और उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए सोर्स डीएनए कहलाएगा, जिससे ये प्रोडक्ट बनता है नेचुरली। तो हम करते क्या हैं कि उस सोर्स ऑर्गेनिज्म से उसके सोर्स डीएनए को निकाल लेते हैं और इसी सोर्स डीएनए में कोई एक ऐसा जीन है जो जीन उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स को बनाएगा। तो हमने एक सोर्स ऑर्गेनिज्म लिया, उससे सोर्स डीएनए को निकाला और इसी सोर्स डीएनए में ये टारगेट जीन है, मीन्स फॉरेन जीन है, एलियन जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायरेबल जीन है, ट्रांस जीन है, किसी भी नाम से इसको पुकारिए, सब अलग अलग नाम इसके हैं। अब यहाँ पर बात उठती है कि हम इस डीएनए से इस जीन को कैसे निकालें। तो इसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, सामान्यतः डीएनए बहुत छोटी सी चीज़ है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, इस आंखों से तो दिखाई देता नहीं है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, तो इसको हम कैंची से तो काटेंगे नहीं, इसको काटने के लिए भी केमिकल का सीजर बना हुआ है और उसका नाम है मॉलिक्यूलर सीजर। और उस मॉलिक्यूलर सीजर को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का एक्शन इस डीएनए पर हम कराते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये पूरे डीएनए की लंबाई में इंस्पेक्शन करता है, ऐसे घूमता जाएगा और जहाँ जहाँ इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का अपना सेल्फ का, जिसके प्रॉपर्टी मैं अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि रेस्ट्रिक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका अपना पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने डाला, तब घूमते 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 जाएगा ये, और जहाँ भी इस एंजाइम को ये अपना पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा वहाँ पर ये बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने के बाद से क्लेविंग साइट पर, रेस्ट्रिक्शन साइट पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगा। तो ऐसे इस एंजाइम का कई सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है डीएनए में, तो हर जगह ये काटता जाएगा, तो इस तरह से डीएनए के कई डिफरेंट साइज के फ्रैगमेंट बन जाएंगे। अब हमें एक ऐसा रिजल्टेंट मिला जिसमें डीएनए के वेरिएबल साइज के फ्रैगमेंट हैं और इसी में ये एक ऐसा फ्रैगमेंट है जो हमारे लिए प्रोडक्ट को बनाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का जो एक्शन होगा उसके द्वारा डीएनए के वेरिएबल साइज के फ्रैगमेंट्स बनेंगे और इसी वेरिएबल साइज में हमारा वह डिजायरेबल जीन प्रेजेंट होगा। अब प्रश्न है, आप इस वेरिएबल साइज के डीएनए फ्रैगमेंट में से इस पर्टिकुलर साइज के डीएनए फ्रैगमेंट को कैसे अलग करेंगे। तो आंसर है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का रिजल्टेंट वेरिएबल साइज का डीएनए फ्रैगमेंट होता है और इसमें से डीएनए को सेपरेट करने की टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। डीएनए बैंड को एक दूसरे से अलग करने की टेक्निक को क्या कहते हैं, सेपरेशन की टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। क्लियर है। अब प्रश्न है क्या करते हैं। तो आंसर होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक मीडियम यूज किया जाता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है और इसका जो मैट्रिक्स होता है वह एगारोस होता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है और सीवीड्स से
सीवीड्स, ब्राउन एल्गी होते हैं, सीवीड्स की सेल वाल से ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो सीवीड्स से पहले हम एगारोस को निकाल लेंगे, एगारोस को ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे और उस पाउडर की नीडिंग करेंगे और नीडिंग करके उसको जेल में कन्वर्ट करके जब जेल में हो जाएगा तो उसको रोलिंग पिन की सहायता से, बेलन की सहायता से एक रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे ऐसे, और थिक चपाती बनाएंगे मोटी सी 1 इंच ऐसा। तो एगारोस जेल की एक हम प्लेट बनाएंगे और रेक्टेंगुलर प्लेट बनाएंगे। जब ये एगारोस जेल की रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगी तो इसके एक साइड पर हम छोटे छोटे गड्ढे बना देंगे, इन गड्ढों को वेल्स कहा जाएगा। और इन गड्ढों के अपोजिट साइड, मतलब वेल्स के अपोजिट साइड पर एनोड की प्लेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एनोड की प्लेट। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह एगारोस का प्लेट था, यह एक मैट्रिक्स और मीडियम है। यह ध्यान रखिएगा, यह सीविंग इफेक्ट जाली के समान काम करेगा, मतलब इधर से कोई चीज़ इधर चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि यह सीविंग है, सीविंग इफेक्ट को शो कर रहा है। अब क्या करेंगे? तो ये जो वेरिएबल साइज का डीएनए फ्रेगमेंट हमें दिखता है, इसी में से थोड़ा थोड़ा उठा करके हर वेल्स में डालते चले जाएंगे। तो आपने जो रिजल्टेंट निकला था, इन सारे रिजल्टेंट्स को कहाँ डाल दिया? इस वेल्स में, जो कि आपने एगारोस के मीडियम में बनाया था। क्लियर इतना? अब आगे का क्या कहानी है? आगे कहानी होती है कि डीएनए का बैंड, जैसा कि हम जानते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड होता है, और ये निगेटिवली चार्ज डीएनए का बैंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड प्लेट की तरफ मूवमेंट करता है ऐसे। अब यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पूरे मीडियम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसा हम जानते हैं कि डीएनए निगेटिव चार्ज का है, तो ये निगेटिव चार्ज का डीएनए इस एगारोस के मीडियम में क्या करेगा? मूवमेंट करेगा टुवर्ड्स एनोड प्लेट के, ऐसे ही मूवमेंट करेगा। और इस डीएनए बैंड की जो मूवमेंट इस प्लेट पर होगी, वह मूवमेंट हमेशा उसके बैंड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर ये साइज बड़ा होगा तो धीरे धीरे चलेगा, छोटा होगा तो तेज चलेगा। जो बैंड का मूवमेंट है, उस मूवमेंट की रेट बैंड के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई आप खुद सोचिएगा ना, छोटा रहेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, बड़ा होगा तो स्पीड कम होगी। तो छोटा वाला तेज़ भागता जाएगा, उससे छोटा वाला, उससे बड़ा वाला और धीरे जाएगा, उससे बड़ा वाला और धीरे, सबसे बड़ा वाला धीरे धीरे चलेगा। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डीएनए के बैंड सेपरेट हो जाएंगे, तो ये सेपरेशन अलग अलग बैंड साइज की रो में अरेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी मूवमेंट अलग अलग थी। तो सबसे छोटा वाला एनोड की तरफ दिखाई देगा और सबसे बड़ी वाली प्लेट ए वेल्स की तरफ दिखाई देगी। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या आप एगारोस जेल में सेपरेट हुए डीएनए बैंड को ऐसे देख पाएंगे? आंसर है नहीं देख पाएंगे बाबा। तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसका भी आंसर है, इस एगारोस जेल पर जो डीएनए बैंड सेपरेट होता है, इस बैंड को देखने के लिए हम डीएनए बैंड को इथिडियम ब्रोमाइड नामक डाई में स्टेन कर देते हैं, कलर कर देते हैं। और इथिडियम ब्रोमाइड में जब ये डाई हो गया तो ये डीएनए का बैंड इस डाई को रिटेन कर लेता है। और इस प्लेट के ऊपर हम अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोप यूवी प्लेट्स लगा देते हैं ऐसे, जैसे ये नीचे बैंड है, ऊपर यूवी प्लेट, और उसके ऊपर से देखेंगे ऐसे। तो जब ये डीएनए का बैंड इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन हो गया हो और अल्ट्रा वायलेट प्लेट के ऊपर से जब हम देखेंगे, तो डीएनए का बैंड ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड में दिखाई देगा। एंड दिस इज द सेपरेशन बाय एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको कि हम लोग बताए थे कि डीएनए निगेटिव चार्ज का है, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बाय सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगारोस जेल।
और जो डीएनए का बैंड रिजॉल्व होगा वह अपने बैंड साइज के अकॉर्डिंग रिजॉल्व होगा। बड़े साइज का बैंड वेल्स के पास रहेगा और छोटे साइज वाला बैंड क्या होगा, इस एनोड प्लेट की तरफ रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैंड का मूवमेंट इस मीडियम में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वह मूवमेंट इसके साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इस बैंड को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करेंगे और अल्ट्रा वायलेट प्लेट का यूज़ करेंगे, तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड अलग अलग साइज में दिखाई देंगे इस एगारोस पेपर पर। चलिए, सेपरेशन भी हो गया। अब प्रश्न पूछता है कि आप इस डीएनए बैंड को निकालेंगे कैसे। मान लीजिए आपको ये साइज का फॉरेन डीएनए चाहिए, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो नाइफ, चाकू का यूज़ करेंगे, नाइफ का। नाइफ से हम एगारोस के साथ साथ, मतलब देखिए अब एगारोस भी निकाल लिया मैंने ऐसे, और इसी के अंदर ब्राइट ऑरेंज बैंड है डीएनए। तो ऐसा नहीं है कि केवल डीएनए बैंड आप निकालेंगे, ना ही ना, आप एगारोस के साथ, ये एगारोस के साथ इस डीएनए बैंड को यहाँ से कट करके निकालेंगे, कट करके निकाल लेंगे। एगारोस भी रहेगा और डीएनए बैंड भी रहेगा। इस प्रोसेस को इल्यूशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। नाउ वी कट द डीएनए बैंड विथ एगारोस जेल एंड remove it by the process of elution, and this process is known as isolation of DNA. अब इसको पानी से धो दीजिए तो एगारोस हट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, डीएनए का बैंड आपके पास बच जाएगा। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को दोनों तरह से आपको समझना है, जैसे आप समझ सकें इजिली। दिस इज द सिंपल वे टू लर्न एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए, अब मैं आपको इसके नोट्स लिखा देता हूं, आप नोट्स लिख लें। इसको डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, मैं इसको मिटा दूं। यस, जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज इट। एंड ऑल ऑफ यू please start to write the notes. The first step, the cutting of DNA. Students, write it. The cutting of DNA by molecular scissor that is the restriction endonuclease. In bracket you can write it restriction endonuclease. The cutting of DNA by molecular scissor results in the fragments of DNA, results into the variable sized, हमने पहले डिस्कस किया है कि अलग अलग साइज का डीएनए फ्रैगमेंट बनेगा, वेरिएबल साइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स। नाउ सेकेंड पॉइंट, इस बैंड को सेपरेट करने की टेक्निक लिखना है आपको। दीज बैंड्स कैन बी सेपरेटेड बाई ए टेक्निक। This band can be separated by a technique known as gel electrophoresis. It is also known as agarose gel electrophoresis.
थर्ड कंडीशन, क्या ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस केवल डीएनए बैंड को सेपरेट करने में यूज होगी? ना, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों के लिए यूज होगी। तो लिखेंगे दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is used to separate molecules like कौन कौन सा मॉलिक्यूल बोला था? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। और इलेक्ट्रो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। प्रोटीन under an electric field the gel electrophoresis is used to separate molecules like DNA, RNA, protein under an electric field. अब मैंने चौथे पॉइंट्स में क्या बोला याद करिए कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वह पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, किस में? तो एक मीडियम में या एक मैट्रिक्स में, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंस डीएनए आर negatively charged, since DNA is negatively charged, they can separate by forcing them, they can separate, ये अलग किया जा सकता है, they can separate by forcing them, by forcing them, they can separate by forcing them to move towards anode, to move towards anode। आपने देखा था किसकी तरफ? towards anode plate, anode, to move towards anode under the electric field, under the electric field, और ये फील्ड कहाँ तैयार करना है? तो एक मीडियम में तैयार करना है जिसका नाम है एगारोस। थ्रू ए मीडियम, या इस मीडियम को हम लोग मैट्रिक्स भी नाम देते हैं, मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये नोट्स एक एक स्टेप में क्रम से चल रहा है कि द कटिंग ऑफ डीएनए बाय मॉलिक्यूलर सीजर, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रिजल्ट्स इनटू द वेरिएबल साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स। जब किसी भी डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा कट करते हैं तो वह वेरिएबल साइज के डीएनए फ्रैगमेंट्स में बदल जाता है। सेकेंड पॉइंट, द बैंड कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उस अलग अलग साइज के डीएनए बैंड को सेपरेट किया जाता है एक टेक्निक के द्वारा जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड पॉइंट, द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेपरेट करते हैं। सिंस डीएनए, चौथा पॉइंट, सिंस डीएनए आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स ए नोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मैट्रिक्स। हम जानते हैं कि डीएनए नेगेटिव चार्ज का होता है, तो हम उसको एनोड प्लेट की तरफ फोर्स करें जिससे कि वो मूवमेंट कर जाए। तो इसके लिए मूवमेंट करने के लिए निगेटिव चार्ज डीएनए के अपोजिट में हम एक एनोड प्लेट लगा देते हैं और उस एनोड प्लेट के तरफ वह डीएनए फोर्सिबली मूव करने लगता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में,
जिसका मीडियम क्या होगा, तो मैट्रिक्स है। अब हमने आपको ये भी समझाया था कि जो मीडियम है या मैट्रिक्स है वह किस चीज़ का बना है, तो आंसर है एगारोस का बना है। तो अब अगले 5वें पॉइंट्स में हम लोग आएंगे, 5th पॉइंट्स में। नाउ स्टूडेंट्स राइट 5th पॉइंट। नाउएडेज, आजकल जो यूज करते हैं, नाउएडेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज, द मोस्ट कॉमनली, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स जो होता है इज एगारोस, इज क्या है भाई, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एगारोस। जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है और ये सीवीड से ऑब्टेन किया जाता है, विच इज ए नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे भाई, तो आंसर है सीवीड्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स। इस एगारोस पर डीएनए का बैंड कैसे सेपरेट होगा, तो आंसर है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो लिखेंगे 6th पॉइंट, द डीएनए, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए स्टूडेंट्स, द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट्स मीन्स रिजॉल्व, अलग अलग हो जाना, रिजॉल्व। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, थ्रू सीविंग इफेक्ट, किसके थ्रू, तो यहां पर लिखना है थ्रू सीविंग इफेक्ट, SEIVING, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाई एगारोस। और ये इफेक्ट कौन प्रोवाइड करेगा, तो प्रोवाइडेड बाई एगारोस, एगारोस के द्वारा ये प्रोवाइड होगा। जिसमें कि बैंड साइज का मूवमेंट, जो मूवमेंट की रेट होगी, रेट वह कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंड साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बैंड साइज के, छोटा बैंड जल्दी जाएगा, बड़ा बैंड धीरे धीरे जाएगा। तो 7th पॉइंट लिखेंगे 7वां, हेंस स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज, हेंस स्मॉलर द बैंड साइज, स्मॉलर द बैंड साइज, छोटा बैंड साइज होगा तो द फार्दर इट मूव्स, द फार्दर इट मूव्स, फार्दर इट मूव्स। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखना होगा आपको, द डिफरेंशियल मोबिलिटी, जो अलग अलग मोबिलिटी आती है, द डिफरेंशियल मोबिलिटी
ऑफ डीएनए बैंड, जो डीएनए बैंड की मोबिलिटी होती है, मतलब फ्रैगमेंट की, डीएनए फ्रैगमेंट की, द डिफरेंशियल मोबिलिटी ऑफ डीएनए बैंड डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, डिपेंड्स किस पर रहेगा, डिपेंड्स अपॉन, पहली चार्ज, चार्ज के ऊपर, और सेकेंड साइज के ऊपर, साइज ऑफ बैंड। तो चार्ज कैसा है, कितना है, और साइज कितनी है, इस पर डिफरेंशियल मोबिलिटी डिपेंड करेगी। स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि जो आज के समय में कॉमनली यूज जो मैट्रिक्स है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वह एक एगारोस होता है, जो एक नेचुरल पॉलीमर है और सीवीड से ऑब्टेंड किया जाता है आज के समय में। फिर क्या कहता है कि द डीएनए बैंड सेपरेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। डीएनए का बैंड उस एगारोस के ऊपर अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होता है थ्रू सीविंग इफेक्ट, क्योंकि भाई मीडियम है ना, तो वो एक पेपर हमने बना दिया है, प्लेट बना दिया है, तो प्लेट के अंदर एक लीनियर पॉलीमर ये है, तो बीच बीच में जगह होगी ऐसे, तो उसी जाली में से गुजरते हुए डीएनए का बैंड पास करेगा थ्रू सीविंग इफेक्ट, एंड देयर रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंड साइज। छोटा बैंड जल्दी जाएगा, बड़ा बैंड धीरे धीरे जाएगा। हेंस स्मॉलर द बैंड साइज द फार्दर इट्स मूव, जल्दी मूव कर जाएगा। और डिफरेंशियल मोबिलिटी डिपेंड करेगी बैंड के चार्ज पर और बैंड की साइज पर। अंतिम बात, इस बैंड जो सेपरेट हो जाएगा उसको आप देखेंगे कैसे, कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो अगले स्टेटमेंट पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप लिखे आप लोग, राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड, देखा जा सकता है, कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए, ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। स्टेन करने के बाद ही देख सकते हैं आप, ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ इथिडियम ब्रोमाइड, विथ इथिडियम ब्रोमाइड, एक डाई है, इसके द्वारा ब्रोमाइड, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमें और क्या चाहिए, अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप भी चाहिए देखने के लिए। फॉलोड बाय एक्सपोजर टू, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू followed by exposure to ultraviolet radiation, UV रेडिएशन। क्यों? क्योंकि हम सामान्य लाइट में डीएनए बैंड को नहीं देख सकते। We cannot see DNA band in visible light without staining। लिख देता हूं मैं, we cannot see DNA band in visual light without staining, without staining। आप नहीं देख सकते इसको, इसलिए आपको स्टेन करना ही पड़ेगा। कैसा बैंड दिखाई देगा? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है ब्राइट,
orange, bright orange colored band of DNA, bright orange colored of DNA, bright orange colored of DNA in ethidium bromide, in ethidium bromide, ETBR ऐसे होता है, ethidium bromide stained gel exposed to stained gel किस में? तो आंसर होता है exposed to UV रेडिएशन, UV रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स ये एक कॉन्सेप्ट था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जिसको कि मैंने आपको समझाया, और आई होप you all understand about this lecture. If you have any problem, then freely ask the questions. I will give you answers. In next lecture, we will study an important topic, that is the vector DNA. So students, wait for the next lecture. See you in next lecture. Till bye.